بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام ان پر جو لائق درود و سلام ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کیجئے اور کامنٹ کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیجئے۔ ناظرین گرامی، یہودی روایات کے مطابق سیت یا شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اور نبی تھے۔ ان کا ذکر تورات میں ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے مطابق یہ آدم اور حوا کے بیٹے اور حابیل و قابیل کے بھائی تھے۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش کے باب 4 کی آیت 25 میں مذکور ہے کہ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام شیس رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابیل کے عوض جس کو قابیل نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ یعنی حوا کو یقین تھا کہ شیس ان کو حابیل کے بدلے میں اور حابیل صبر کی وجہ سے انعام کے طور پر عطا کیا گیا تھا۔ کتاب پیدائش کے مطابق جب شیس تولد ہوئے اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، اور شیس ہو بہو آدم علیہ السلام کی شبیہ اور صورت پر تھے۔ ناظرین گرامی، اسلامی روایات کے مطابق شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے تیسرے فرزند تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق شیس حابیل کے شہید ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے نہ صرف انعام کے طور پر آدم و حوا کو عطا کیے گئے، بلکہ وہ اللہ کے اور اپنے والدین کے فرما بردار بھی تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد کی طرح ایک بہن کے ساتھ جڑواں تھے، اور اس بہن کا نام ازورا تھا، لیکن بعض تواریخ کے مطابق آپ جڑواں نہیں تھے۔ تاریخ ماخذ میں شیس علیہ السلام کی اہلیہ کا نام حوریہ لکھا گیا ہے، جس سے شادی حضرت شیس علیہ السلام کی تجویز پر ہوئی ہے۔ اس شادی کے نتیجے میں 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑا انوش آپ کے جانشین بنے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی 105 سال کی عمر میں انوش پیدا ہوئے۔ بعض ماخذ میں شیس علیہ السلام کی شادی قابیل کی بہن اکلیمہ سے ہونے کا کہا گیا ہے، اگرچہ قرآن پاک میں شیس کا کوئی تذکرہ نہیں، تاہم اسلامی روایات کے مطابق شیس علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگوار حضرت آدم علیہ السلام کی طرح نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے، تاکہ وہ بنی نوع انسان رہنمائی کریں، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد انسانوں کی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف رہنمائی کی۔ آپ ایک بلند پایہ شخصیت ہیں، اور آپ کا شمار طوفان نوح سے قبل نسل آدم میں اول العزم نبی کے طور پر ہوتا ہے، جبکہ بعض روایات کے مطابق شیس ایک صاحب مصحف نبی تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق شیس پیدا ہوئے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 100 برس یا کچھ زیادہ تھی۔ آدم علیہ السلام نے شیس کو اپنا جانشین منتخب کیا تاکہ وہ آپ کے بعد اولاد آدم کی رہنمائی کر سکیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شیس کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں خاطر خواہ دانش و معرفت عطا ہوئی تھی۔ یہودیت اور مسیحیت کی طرح اسلام بھی انسان کا شجرہ نامہ حضرت شیس سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ جب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا اور حابیل سے کوئی وارث نہیں تھا، جبکہ قابیل کے ورثاء جو نہایت درجہ گمراہ تھے طوفان نوح میں تباہ کر دیے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت شیس علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اس کی نسل سے پھیلے ہیں، کیونکہ قابیل کی نسل اور خاندان ختم ہوئی ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق قابیل کی نسل زنا، شراب خوری، آتش پرستی جیسے گناہ اور لہو لعب کے آلات استعمال کرنے کی وجہ سے طوفان نوح کی وجہ سے ختم ہوئی، اور صرف شیس کی نسل باقی رہی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین اور وصی بنے، اور وہ تمام علوم جو آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے وہ آپ میں منتقل ہو گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت کے بعد نبوت کے مقام پر فائز ہوئے اور لوگوں پر حکومت کی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے قوانین جو احکام اور سزاؤں پر مشتمل تھے کو مفسدوں پر جاری کیا، اور لوگوں کو تقوی الہی کی دعوت کی ہے اور اچھے کام کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ کہیں حابیل کی طرح شیس بھی قتل نہ ہو جائے، آپ کو حکم دیا کہ قابیل سے اپنے علم اور مقام کو مخفی رکھے۔ اسی لیے شیس علیہ السلام ایک عرصے تک تقیہ کی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے۔
بعض गुजारिशात में भी मिलता है कि शीश जानशीन बनने के बाद काबिल की तरफ से धमकियां भी मिलीं। इमाम सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब वफ़ात पाई तो शीस अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जनाजे पर नमाज पढ़ने की दरख्वास्त की। जिब्रील ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे वालिद के लिए सजदा करने का हुक्म दिया और इसीलिए इसके नेक बेटों पर सबकत नहीं लेता हूँ और आप आदम के बेहतरीन बेटे हैं। शीस अलैहिस्सलाम की महल ज़िंदगी और तबलीग मक्का करार दिया गया और आप अपनी नबूवत के दौरान जिब्रील और दीगर फरिश्तों के साथ राब्ते में थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक लिखाई ईजाद करने वाला पहला शख्स जनाब शीस अलैहिस्सलाम हैं। नाज़रीन गिरामी, हज़रत शीस आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों की तरह आसमानी कई सहीफ़ों के मालिक थे। कहा जाता है कि तमाम बनी आदम इन्हीं की औलाद हैं क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों की औलाद का सिलसिला आगे न चल सका। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर 100 सहीफ़े नाज़िल किए और 4 किताबें, और इन 100 सहीफ़ों में से 50 सहीफ़े हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर उतरे और इससे उनकी नबूवत साबित होती है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हुस्न सूरत में और ख़ूबसूरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे और तमाम औलाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नज़दीक महबूब थे। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने कबल वफ़ात के इनको अपना वली अहद बनाया और बतरीके वसीयत के फरमाया कि जब तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना में हो, अगर तुम इस ज़माना को पाओ तो मेरी हड्डियों को कश्ती में रखवाना जो गर्क होने से महफूज रहे, या अपनी औलाद को वसीयत करना कि इस तरह अमल में लाएं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अक्सर औकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अहवाल बहिश्त लज्जत के साथ सुनते थे और आसमानी सहीफ़ों का मज़मून भी दरियाफ्त करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात से कबल शीस अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम मेरे बाद मेरे जानशीन हो, तुम तकवा इख्तियार करो और जब भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करो तो इसके साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर लो, क्योंकि मैंने उनका नाम साक़ अर्श पर उस वक्त लिखा हुआ देखा जबकि मैं रूह और मिट्टी की दरमियानी हालत में था। फिर मैंने तमाम आसमानों का चक्कर लगाया तो मैंने उस हस्ती की शान महबूबियत का बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ये आलिम देखा कि आपका नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह को इतना प्यारा है कि मैंने आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिखा हो। मेरे रब ने मुझे जन्नत में रखा तो मैंने जन्नत में कोई महल, कोई बालाखाना, कोई दरीचा ऐसा न देखा कि जिस पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत के अजीम मनसब पर फायज फरमाया और औलाद कसीर से नवासा। फिर ये कि उनकी औलाद नहायत फरमाबरदार और नेक भी थी जो अपने वालिद के साथ तबलीग दीन के कामों में मसरूफ़ रहती। इब्न कसीर की एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर 100 सहीफ़े नाज़िल किए और 4 किताबें। इन 100 सहीफ़ों में से 50 सहीफ़े हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर उतरे। गो कि कुरान करीम में जिन 25 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के अस्माए गिरामी मज़कूर हैं उनमें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का नाम शामिल नहीं, ताहम अहादीस मुबारका में उनके नबी होने का सराहत के साथ ज़िक्र है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी वालिद की दी हुई तरबियत के तहत अल्लाह ताला के दीन की सरबलंदी में सर्फ की। आखिरी उम्र में ज़्यादा ज़ईफ़ होने की वजह से गोशा नशीन हो गए थे, लेकिन औलाद आपके काम को आगे बढ़ाती रही। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अपने भाई काबिल की औलाद के कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होने और शैतान का आला कार बने रहने की वजह से बड़े फ़िक्रमंद रहते थे और उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिशों में लगे रहते थे, जिन्होंने अपने बाप काबिल की शक्ल के बुत बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी थी। रिवायत में है कि दुनिया में मौजूद तमाम इंसान यानी बनी आदम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही की औलाद हैं, क्योंकि हाबिल तो महज 20 बरस की उम्र में अपने भाई काबिल के हाथों शहीद कर दिए गए थे और उन्होंने कोई वारिस भी नहीं छोड़ा था, जबकि दूसरे बेटे काबिल की औलाद शैतान की पैरोकार, अल्लाह की नाफरमान और कुफर पर गामसन थी, जिसे तूफ़ान नूह में गर्क कर दिया गया था।
मुसलमानों की तरह यहूदी और ईसाई भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम का तीसरा बेटा, नबी और उनका जानशीन तस्लीम करते हैं, जबकि वो भी इस बात के कायल हैं कि मौजूदा तमाम इंसान हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। क़ससुल अंबिया में इब्न कसीर तहरीर फरमाते हैं कि जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फ़र्जंद अनूश को मामलात सपुर्द कर दिए। अनूश के बाद उसका वली अहद कैनान बना। उसके बाद कैनान का फ़र्जंद महलाइल उनका जानशीन बना और ईरानी अजमी लोग उन्हीं के बारे में ख्याल रखते थे कि ये 7 विलायतों के बादशाह बने और ये पहले शख्स हैं जिन्होंने जंगलात का सफाया करके शहरों और कलों की बुनियाद डाली और उन्होंने ही शहर बाबुल और शहर सौस आबाद किए। इबलीस और उसके लश्करियों जिनों वगैरह को भी मार मार कर इंसानी आबादी से भगाकर वीरानों और घाटियों में धकेल दिया। उनका एक बड़ा ताज भी था और वो लोगों को वास भी फरमाते थे। उनकी बादशाही 40 साल रही। जब वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फर्जंद अखनूख को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उन्हें मुख्तलिफ कामों की अंजाम दही के हवाले से वसीयत की। मशहूर अकवाल के मुताबिक यही अखनूख हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात 912 बरस की उम्र में हुई और उनसे मंसूब मज़ारात 3 मुख्तलिफ मकामात गज़ा, इराक़ का शहर मूसल और हिंदुस्तान का इलाका अयोध्या, इनमें से किस में आप मदफून हैं ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मूसल में कायम मज़ार को हालिया इराक़ जंग के दौरान शदीद नुकसान भी पहुँचा था। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मक्का मुकरमा में इंतकाल हुआ और वो वहीं सपुर्द खाक किए गए, जबकि एक ख्याल ये भी है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार लेबनान के एक गांव शीस नबी में है, जहां उनके नाम से एक मस्जिद भी कायम है। 13वीं सदी ईस्वी और बाद में आने वाले अरब जोग्राफिया दानों की रिवायत के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार फ़लस्तीन के शहर रमला के शुमाल मशरिक में वाक़े एक गांव बशीस में था। बशीस 2 अल्फाज बैत और शीस का मजमुआ है, जिसका मतलब है कि खाना शीस अलैहिस्सलाम। 1948 में इज़राइल के मार्ज़ वजूद में आने के वक्त यह गांव गैर आबाद हो गया था, लेकिन आज भी यहाँ 3 कोनों वाला मीनार हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के मज़ार पर कायम है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और अपने तासुरात का इजहार कमेंट के ज़रिए ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।